बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए आप सभी का स्वागत है। होप यू आर ऑल्सो वेल। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग दोनों फॉर्मूले फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए दोनों फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। पहला फॉर्मूला न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन्स डिवाइडेड difference formula is given by fx equals to f of x0 plus x minus x0 divided difference f of x0 x1 plus x minus x0 x minus x1 second order divided difference delta square f of x0 x1 x2 plus so on. This is Newton divided difference formula. Second formula, Lagrange's formula. Both these formulas are using for unequal interval, or fx is given by fx equals to x minus x1 x minus x2 up to x minus xn upon x0 minus x1 x0 minus x2 up to x0 minus xn into f of xn 0 plus f of x minus x0 x minus x2 second term up to x minus xn upon x1 minus x0 x1 minus x2 up to x1 minus xn into f of x1 and so on. These two formulas are used for unequal intervals. Now we want to solve a question. For example, we are giving values of x corresponding fx. We are given. First of all, we are giving 4 conditions: 3, 7, 9 and 10. इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी है वो 168, 120, 72 और 63. These are the values. अब देखिए ये जो दो वैल्यूज हमें दी गई है, समझ में आ रही है आपको बात? ये दो फॉर्मूले अलग अलग हैं. पहले फॉर्मूले में हम लोग यूज कर रहे हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला. सो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ देखिए ये जो हमारे पास यूजिंग बाय टेबल. सो फर्स्टली ऑल वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल. डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हमने लास्ट वीडियो में बनाना सीखा था. अब देखिए हम लोगों ने देखा था 120 माइनस 168 अपॉन 7 माइनस 3, 72 माइनस 120 upon 9 minus 7, 63 minus 72 upon 10 minus 9. After solving these, we get the values of. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -12, ये होगा -24 और ये हो जाएगा आपके पास -9. Then second divided difference delta square is -24 plus 12. This minus this upon 9 minus 3. एंड अगला है -9 प्लस 24 अपॉन 10 माइनस 7, तो विच इज इक्वल्स टू -2 और ये होगा आपके पास 5. एंड डेल्टा क्यूब इज 5 प्लस 2 अपॉन 10 माइनस 3. 10 माइनस 3 मीन्स विच इज इक्वल्स टू 7:7. दिस इज योर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला. Using for this formula, for these argument x जो हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, fx की डिपेंडेंट की वैल्यूज हैं, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 6. f of 6 पे इसकी वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए. Now using this Newton divided difference formula, f of 6 equal to f of 0. This is your x0, x1, x2 and x3 corresponding f of x0. So f of x0 is 168
plus x minus x0 means 6 minus 3 into divided, first divided difference is minus 12 plus 6 minus 3 x minus x0, 6 minus 7 into minus 2. This is second divided difference of f of minus 2, this one. Minus 12 divided, first divided difference minus 12. F of x0 is 168. First divided difference is minus 12. Second divided difference is minus 2. And third divided difference means x, 6 minus 3, 6 minus 7, 6 minus third term 9 into 1. This is the third divided difference. So using this Newton divided difference formula, we have 168, 3 to the 3 12 is 6, 36. 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया 36 प्लस 3 into minus 1 और minus 2, तो ये 2 2 बन जा 2 3 जा 6 प्लस में minus minus plus फिर plus, then again 3 into minus 1 into minus 3, तो ये minus minus plus 3 3 जा 9. So this implies, अब देखिए 9 8 से 14 और 9 23, यहाँ से 1 2 8 183 minus 36, 13 minus 6 is 7 and 17 147. So when you apply Newton divided difference formula for these articles, for these values, independent values of x, you get 147. Now from the Lagrange's formula, put here x is 6, x is 6 minus x1, x1 is 7, so 6 minus 7, 6 minus 9, 6 minus 10 upon x0, x0 is 3, so 3 minus 7, 3 minus 9, 3 minus 10 into f of x0 is 168 plus 6 minus 3, देखिए first x minus x0, 6 minus 7 छोड़ दे second term, third term 6 minus 9, 6 minus 10 upon second term x7, 7 minus 3, 7 minus 9, 7 minus 10 into, this is your second term is 120. Means we are using only first two terms, x0, x1, x2, x3, f of x0, f of x1, f of x2, f of x3. Using third term, 6 minus 3, 6 minus 7, 6 minus 10 upon 9 minus 3, 9 minus 7, 9 minus 10 into 72. And then last is 6 minus 3, 6 minus 7, 6 minus 9 upon 10 minus 3, 10 minus 7, 10 minus 9 into 63. These are the f of x0, this is your f of x1, this is f of x2, this is f of x3. Corresponding, after solving these terms, you get, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इनकी वैल्यूज देखिए, minus 12 upon 168, minus 168 into 168 plus 36 upon 24 into 120 plus 12 upon minus 12 into 72 plus 9 upon 21 into 63. Now solving these, 168 so 168 cancel, only 12 minus minus cancel, then plus 2 is 10 और 2 से और आ गया 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 30 और 5 से 15 से 18, 180, then 12 से 12 cancel, minus 72 and 6 1 3 जा, तो plus 27. This implies, आप इनको ऐड कर ले तो ये हो गया 9, 19 और 2 21 minus 72. तो this implies 9 minus 2 क्या 7 और 21 में से 147. तो आप देखिए इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके, by using the table, difference divided difference table,
we can find the value for x equals to 6, you get 147. तो आप देखिए, चाहे आप इस फॉर्मूले से यूज करें चाहे उस फॉर्मूले से यूज करें, दोनों फॉर्मूलों पे सॉल्व करने पर आप देखिए आंसर दोनों का सेम आएगा, पहला तो। दूसरा, आप इन दोनों फॉर्मूलों को जब यूज करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कैलकुलेशन कम है, इसमें केवल आपको डिफरेंस टेबल बनानी है, यूजिंग दिस फॉर्मूला और सॉल्व दिस वन। इसको जब हम लिखते हैं तो आपस में इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, देन यू गेट योर रिजल्ट। नाउ another question, another type of question using Lagrange's formula। ठीक, हम और एक another question यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे using the Lagrange's formula। फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शन की पॉलिनोमियल फॉर्म निकालनी होगी, और पॉलिनोमियल फॉर्म निकलने के बाद हम उसका डिफरेंस करेंगे। हम जानते हैं, अब फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है हमारा मैक्सिमम मिनिमम निकालना, उसी को यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अनदर फॉर्म फॉर Lagrange's formula। देखिए, अब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग दिस फॉर्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सो नाउ the following values of the fx are given, the following values are given, f of 1 equals to 4, f of 2 equals to 5, f of 7 equals to 6, 7 equal to 5 again, f of 8 equals to 4, and find the value f6। f of 6 की फाइंड वैल्यू निकालें, and hence find the maximum और minimum वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें 4 वैल्यूज गिवन है, करस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यूज गिवन है, और लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पहले तो f6 पे वैल्यू निकालें, दिस इज f6 पे आपको वैल्यू निकालनी है, फिर इसका मैक्सिमम मिनिमम भी निकालना है। तो यूजिंग Lagrange's formula, to find the polynomial, इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसको पॉलिनोमियल निकालना है। क्यों निकालना है पॉलिनोमियल? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा तो हम लोग उसका मैक्सिमम मिनिमम निकाला जा सकता है। हम जानते हैं, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था y equals to fx, then find the value of fx, f dash x equals to 0 first step, second step f dash x equal to 0, to find the values of x, let us suppose a b c, then third is if f double dash x निकालेंगे, if f double dash x a equal to greater than 0 अर्थात पॉजिटिव और लेस देन 0 अर्थात नेगेटिव, नेगेटिव पे वैल्यू मैक्सिमम और पॉजिटिव पे वैल्यू मिनिमम, ये हम जानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx equals to, this is here is x0 equal to 1, x1 equals to 2, x2 equals to 7, x3 equals to 8, f of x0 equal to 4, f of x1 equals to 5, f of x2 equals to again 5, f of x3 equals to 4. These are the values we have given. Now to find the value of fx. So fx equals to x minus x1. x1 is 2, x minus 2, x minus 7, x minus 8 upon 1 minus 2, 1 minus 7, 1 minus 8 into 4. This is your x minus x1, x minus x2, x minus x3 upon x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3 into 4 plus, now second term
x2 x1 में, सो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 7 x माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 1 2 माइनस 7 2 माइनस 8 इंटू 5 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2, अगेन थर्ड टर्म छोड़ दीजिए, x माइनस 8 अपॉन थर्ड नंबर 7 7 minus 1 7 minus 2 7 minus 3 into 5. Then last term is x minus 1 x minus 2 x minus 7 upon 8 minus 1 8 minus 2 8 minus 3 into 4. When you substitute all these values in the Lagrange's formula, you get this type of this equation. Now, after solving these terms, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 4/42 x माइनस 2 x माइनस 7 x माइनस 8 सॉल्व करें फर्स्ट टर्म को, देन प्लस सेकेंड टर्म 5/30 x माइनस 1 x माइनस 7 x माइनस 8 प्लस माइनस आएगा माइनस 5/30 x minus 1 x minus 2 x minus 8 plus 4/42 x minus 1 x minus 2 x minus 7. These numerical values are solving first में 4/42, second में 5/30, third में 5/30 and fourth में 4/42. So now after solving these terms we have 4/6 x square minus 9x plus 14 minus 5 x square minus 9x plus 8. अभी देखेंगे आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास x minus 2 x minus 7 x minus 8, जब इस दो को टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x square minus 9x plus 14 ये टर्म बनेगी, फिर उसको हमने क्या किया x minus 8 से और मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म बनेगी 1/4 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 एंड माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, बाकी टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो देयरफॉर fx इक्वल्स टू 1/6 माइनस x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16, दिस इज योर fx। और वी नो दैट फर्स्ट ईयर के केसेस में हम पढ़ चुके हैं या 12th में हम पढ़ चुके हैं, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x, और f डैश x निकालेंगे फिर उसको इक्वेट टू 0 करके हम x की वैल्यूज निकालते हैं, ये तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट दिस। नाउ फॉर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f डैश x टू फाइंड आउट द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, सो 1/6 माइनस 2x प्लस 9 और इक्वेट टू 0, नंबर थर्ड स्टेप इक्वेट टू 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इक्वेट टू 0 करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 9, सो x इक्वल्स टू 4.5 या 9/2, x इक्वल्स टू 9/2, दिस इज द वैल्यू। नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमम अगेन f डबल डैश x इक्वल्स टू, ये देखिए माइनस 1/3x माइनस 1/3, तो विच इज नेगेटिव, सो फंक्शन इज मैक्सिमम, और x की वैल्यू जो होगी वो 9/2 या 4.5, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f6 इक्वल्स टू means we have put the value of x equals to 6 in this equation, and after solving these values, you get 1/6 minus 36 plus 54 plus 16, which is equals to 17/3. This is your answer for value of x equals to 6, and for the maxima and minima we have using this polynomial find out the value of f dash x. f dash x equals to 1/6 minus 2x plus 9, और f dash x को 0 के बराबर रखने पर हमारे पास x की वैल्यूज आएगी, राइट। अब देखिए हम लोगों ने जो इसको फॉर्मूले को सॉल्व किया फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, f dash x then f dash x equal to 0 to find the value of ABC, हम जानते हैं ये आर्टिकल है, फिर f डबल डैश x की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव,
मैक्सिमम वैल्यू, और यदि ये पॉजिटिव है तो ये मिनिमम वैल्यूज। सो अपन जानते हैं, उसी को यूज़ करते हुए हम इस लैग्रेंज फॉर्मूले की सहायता से किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकाली जा सकती है टू चेंज इनटू ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा मिनिमा और वैल्यूज आल्सो बाय यूजिंग दिस लैग्रेंज फॉर्मूला। नाउ अब एक और हम क्वेश्चन करेंगे यूजिंग दिस लैग्रेंज फॉर्मूला टू फाइंड आउट द, टू सॉल्व करेंगे, शो करेंगे कि हम किस तरह से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। Now we are given u of -1, u of 0, u of 1 and u of 2. These are the terms, and show that ux equals to y of u0 plus x u1 plus y into y square minus 1 upon factorial 3 delta square u minus 1 plus x into x square minus 1 upon factorial 3, this is your factorial 2 होना चाहिए, this is your factorial 2, and last is delta square u0 where x plus y equal to 1, ये given है, x plus y equals to 1, ये given है। now हमारे पास देखिए, इसको इसके इक्वेट करना है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, फॉरवर्ड टेकिंग डेल्टा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये अपन जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। जब हम इस सफिक्स का यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज होगा, और हमें डेल्टा गिवन है, वी हैव गिवन है डेल्टास। सो जब आपके पास डेल्टास गिवन है तो हम इस डेल्टा के अंदर हम डेल्टा के फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो फ्रॉम एलएचएस साइड आल्सो, फर्स्टली एलएचएस हम सॉल्व कर रहे हैं यूएक्स। अब यूएक्स के लिए क्या कर रहे हैं, टेकिंग लैग्रेंज फॉर्मूला, टेकिंग लैग्रेंज फॉर्मूला for u of -1, u of 0, u of 1 and u of 2 means हमारे पास x0 is -1, x1 is 0, x2 is 1, x3 is 2, इसके करस्पॉन्डिंग ux के वैल्यूज गिवन है। सो ux इक्वल्स टू x माइनस x0 is -1 को छोड़ दिया मैंने, तो x minus 0, x minus 1, x minus 2 अपॉन -1 -0 -1 -1 और -1 -2 इंटू u of -1। ये u of -1 मीन्स आपका fx है, और x0 इज दिस -1। सो -1 पे हमारी फर्स्ट टर्म लिख दिया लैग्रेंज फॉर्मूले की, राइट। अब आप इसको देखिए अगला वाला, x फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो x plus 1, फिर x minus 0 छोड़ दीजिए, x minus 1, x minus 2 अपॉन 0 plus 1, फिर 0 minus 1 और 0 minus 2 into u of 0 plus third term x plus 1, x minus 0 and x minus 2 upon third term में से 1 plus 1, 1 minus 0, 1 minus 2 into u of 1, and last is x plus 1, x minus 0 और x minus 1 upon 2 plus 1, 2 minus 0, 2 minus 1 into u of 2. This is the Lagrange's formula for u of -1, u of -2, u of -3 and so on. Now using this formula, we have, after solving these terms, we have, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए x minus 1
x माइनस 2 अपॉन -1 -2 -3, तो -1 -2 और -3, so -1 upon -6 u of -1 plus x minus 1 0 minus 1, so this is your x plus 1 x minus 1 x minus 2, so x plus 1 x minus 1 और x minus 2 upon 1 minus 1 minus 2, तो only 2 u0 plus x minus 1 x minus 2 upon 2 into 1 into -1, तो -2 u of 1 plus x plus 1 x minus 1 upon 3 into 2 6 only u of 2. This is your terms of first second third term, ये हमारे पास terms हैं. Now using another form for RHS side, तो RHS side में हम जब यूज करेंगे तो आप देखिए RHS साइड में आपके पास y की टर्म गिवन है, सो वी हैव गिवन y x plus y equal to 1, y equal to 1 minus x, सो 1 minus x से हम लोग यूज करते हुए और इसकी वैल्यू निकाले हैं, किसकी, डेल्टा स्क्वायर y minus 1 डेल्टा स्क्वायर y 0 और u of 1, इन टर्म्स की वैल्यूज निकालनी है हमें, सो डेल्टा स्क्वायर u of -1 इक्वल्स टू हम जानते हैं e minus 1 का होल स्क्वायर u of -1, therefore e square minus 2e plus 1 u of -1, therefore u of 2 minus 1 means u1 minus 2 of u minus 1 plus u is 0 हो जाएगा और u minus 1, so u1 minus 2 u0 plus u minus 1, this is equation number 2. Now delta square u0, again e square minus 2e plus 1 u0, therefore u2 minus 2 u1 plus u0, this is third equation. So हमारी बिल्कुल ये क्लियर है क्योंकि फॉरवर्ड फॉर्मूले को यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं. सो फ्रॉम RHS साइड y of u0 plus x u1 plus y square minus 1 upon factorial 2 delta square y minus 1 plus x square minus 1 upon factorial 3 delta square u0, ये गिवन है. Now change y equals to 1 minus x u0 plus x u1 को u1 की फॉर्म में लिख रहे हैं x of u1 plus ये हो गया 1 minus x and 1 minus x का होल स्क्वायर, 1 minus x का होल स्क्वायर minus 1 upon 2 और डेल्टा स्क्वायर y minus 1 means u1 minus delta u0 plus u of minus 1 plus x square minus 1 upon 6 into u2 minus 2 u1 plus u0. Now इन सबको अलग अलग करें और u1 u minus 1 u0 और u2 की टर्म्स को अलग अलग करने पर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से, माइनस x minus 1 x minus 2 upon 6 u of minus 1 plus x minus 2 x minus 1 x plus 1 upon 2 u0 plus माइनस में x minus 2 x और x plus 1 upon 2 u1 plus x minus 1 x और x plus 1 upon 6 u2. These are the RHS side. So from this equation first, and this equation is 4, first equals to 4. Therefore, this has proved by using Laplace's formula. So this is the another method to use Laplace's formula to show that this identity. इसी प्रकार हम और एक और आइडेंटिटीज आप देखें इन वीडियोस के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और अनदर जो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं या क्वेश्चन में पेपर दे क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चंस दिए गए हैं यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला एंड लैग्रेंज फार्मूला. होप ऑल द बेस्ट. एंड अगर आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.